आज गाइस हम एंड्रू टेट की एक क्लिप पे रिएक्ट करेंगे। गाइस देखो, एंड्रू टेट में तमाम कमियां होंगी, उसकी पेट्रियार्कल शिट जो भी है, लेकिन कभी कभी ऐसी डीप बातें बोल जाता है ना भाई वो, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि एंड्रू टेट ऐसी बात बोल भी सकता है। तो ऐसे टाइप की एक रील मुझे आज मिली, इसको मैं ऐसा प्ले क्या करते हैं। दिखाने वाला है भाई तू? मतलब मैंने तो उसकी हमेशा वो बकचोदी वाली देखी है। यार कभी कभी डीप शिट बोल देता है भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दिखा मेरे को इसका, ऐसा क्या बोल दिया भाई? and a private jet. Take it from a billionaire with Paganis and Bugattis and Yescos and penthouses in the sky and homes all around the world and a yacht and a private jet. The second you have everything you want, you're going to want something else. So you might as well get used to enjoying wanting things. In fact, one of the saddest days is when you realize you have everything you want and you lose that one day I hope to have. That's actually a fantastic feeling. That one day I hope to have, if I save up, maybe one day I'll get the feeling that you have right now. You need to enjoy it. Don't be mad that you don't have what you want. Enjoy that feeling. Because once you have everything you want and you're sitting there with millions and millions and millions of dollars and there's nothing to buy, nothing excites you, you don't go to the mall, you don't want to go shopping, you don't want to look at links on the internet, you don't want to dream, all of it's done. You have everything. It's boring. Once that happens, you miss the days where you'd sit and go, man, if I save up, I can get that BMW. Or man, if I work really hard, I can get a Lamborghini. Or that $2 million watch. Wow, that's life-changing for me. Once you have everything, then you sit around with all your money and you think, there's nothing to buy now but power. And that's why the rich people do what they do with politics, because there's not enough items on earth worth buying. So you just try and buy power and buy control over other people. And that's where people's minds get warped. That's where the bad things begin to happen. But if you're at home right now and you have a dream, which is some material item, a car, a house, retiring your mother, a holiday, a boat, whatever it is, if you have a dream, enjoy the dream. Because the second that you have everything you've dreamt of, you're going to want something else. And even worse, once you've completed that cycle enough times, you're not going to want anything at all. And you're going to miss the days that you sat around like you're sitting right now wanting stuff. तालियां नहीं बनती भाई इस पे। माइंड ब्लोइंग भाई। मतलब मैं तो ये तो सोच रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि इसका क्लोन तो नहीं बैठा है ना, क्योंकि पहले वाला तो अलग ही था भाई। देख यार मतलब, ये एकदम लेटेस्ट वीडियो है ये। हाँ ये परसों का ही वीडियो है, ओ परसों ही बोला है इसने। फक, इससे पता है, इसने प्योर फिलोसफी बोली है भाई। प्योर फिलोसफी। प्योर ईस्टर्न फिलोसफी। ओ फक, काफी नॉट नॉट बैड भाई, इम्प्रेसिव है ये तो भाई बंदा। मैं ना इस पे इस वाले में। हाँ भाई। और देख, ये चीज हम भी कितने टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, है ना, कि हम बोर हो गए हैं। अब मैं अपनी वो गाथा शुरू नहीं करूंगा दोबारा से, लेकिन हाँ, once you have something that you had desired a long ago, and once you achieve that, जो भी डिजायर आपकी थी, आपने वो डिजायर पूरी कर ली, देन उसकी सेटिस्फैक्शन, उसका मजा चला जाता है भाई। इट्स ओवर। ये वैसे ही है जैसे बच्चा बार बार रोता रहता है ना, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, और एक महीने बाद उस टॉय से बोर हो जाता है। दुनिया में कोई भी आइटम आप खरीद लो, कुछ भी एक्सपीरियंस लिव कर लो, वो कुछ टाइम बाद आप उससे बोर हो ही जाते हो। यही एंडोटेट बोल रहा है भाई अपना। या मतलब आई जेन्युइनली इम्प्रेस्ड भाई। So, इस सेंस में ना, क्योंकि मैंने इसके हमेशा वो वाले वीडियोस देखे थे जिसमें ये पुश कर रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज करो आपको। तू एड टू स्टेज के दिखा रहा है, हाँ। तो या मतलब कि मटेरियल आ गया तू भाई, क्या कर रहा है तू? वो पता नहीं भाई। वो याद है फिलोसफी गाई आया था जो लास्ट टाइम, उसने किया था बीच में एग्जिट हुक करके भाई। सो हाँ, तो मतलब इस टॉपिक पे वापस आते हैं भाई। मैंने इसको तब देखा था जब ये हार्डकोर मटेरियलिज्म शव कर रहा था लोगों के थ्रोट के हम्म। अंदर, ठीक है। और लोग क्या, मतलब काफी ज्यादा आपके
लाइक जेन जीज इन्फ्लुएंस हो रहे थे, अब भी हो रहे होंगे इसके पास वीडियो कंटेंट से। ये ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर था मेरे लिए, हम्म ये वाला इसका कंटेंट। क्योंकि लिटरली हम लोग इन्हीं पे बात करते हैं। और इस चीज को तो सोच करके देख, वो ये बोल रहा है कि मैं बिलियनियर हूं। लेट्स से एक आपने बेंचमार्क सेट कर लिया है कि बिलियनियर होना मतलब अब मेरे पास सब कुछ है। बिलियनियर नहीं हूं तो कुछ अभी भी एक कसक रहेगी मिसिंग कि नहीं, है। मेरे को वो होना हम्म है ना। इस चीज को बस समझना। ठीक है, बिलियनियर हो गए तभी आपको सब चीजों से बोरियत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये 1 to 10 के स्केल में रखते हैं, 10 बीइंग द बिलियनियर, आप ये 5 पे भी अचीव कर सकते हो। 5 पे आने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि भाई मैं 1 से भी बोर हो गया, 2 से भी बोर हो गया। तो ये एक हम्म पैटर्न है, उस पैटर्न को जितने जल्दी समझ जाओगे, जो बुद्धिमान होते हैं वो शायद 1 या 2 पे समझ जाते हैं, जो होते हैं कि जो 5th पे समझते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप एज्यूमिंग लार्जर पर्सपेक्टिव से आप 5th पे अटकर यहाँ पे समझ जाओ, आपकी अब डिजायर ही खत्म हो गई है लेवल 6 पे जाने की, 7 पे या बिलियनर बनने की। तो आप उसी पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहीं पे आपको मोक्ष मिल जाएगा, सो कॉल्ड मोक्ष या अवेयरनेस। खत्म हो जाएंगी आपकी डिजायरें। तो ये मैसेज इन अ वे वो है, ये नहीं कि बिलियनियर पे ही पहुंच करके मेरे को पता हम्म चलेगा। लेकिन जब आप वो और उस प्रोसेस में होते हैं ना, उस इल्यूजन में है ना, इसका जस्ट वो एक सेकंड पॉइंट था कि जब आप उस इल्यूजन में होते हो ना, उस चीज को प्लीज एंजॉय कर लो, बिकॉज दैट्स द ट्रुथ। वहां पे आने हम्म के बाद आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस था, हार्ड वर्क कर रहे हो, हसल कर रहे हो, इट वॉज पार्ट ऑफ इट। बट इट हेल्प यू रीच दैट स्टेज एंड इवेंचुअली लेट यू नो दैट इट्स जस्ट वर्थ इट, इट्स वर्थलेस। और मुझे कमेंडेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि एंड्रू टेट ना अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक बाकी लोग पहुंच चुके हैं। ही इज नॉट द टॉप 10 बिलियनर्स ऑफ द हम्म। वर्ल्ड। ये बिल्कुल। इसी स्टेज पे आके समझ चुका है कि ये वर्थ इट नहीं है। डिजायर्स एंडलेस होती हैं। तो और इसका जो वो वाला पॉइंट था ना भाई कि जब चीजें खत्म हो जाती हैं खरीदने को, आप पता है फिर क्या डिजायर करते हो? पावर। पावर, ये हाँ, इतना ये अच्छा सेकंड पॉइंट है पॉइंट। ना भाई। इतना सेक्सी पॉइंट है भाई ये। मतलब तभी हम देखते हैं भाई, जैसे हम कभी ना ऐसे सोचते हैं यार, इतने बड़े बिलियनर्स हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप है या कुछ ऐसे लोग हैं, जेफरी एप्स्टीन ले ले, इनके पास इतना पैसा था, ये कुछ भी खरीद सकते थे, ये क्यों इन गलत हरकतों में जा रहे हैं? क्यों एप्स्टीन आइलैंड पे ये सब चल रहा है? पता है यही डिजायर ना आपको इस लेवल तक फिर लेके जाती है। क्योंकि हमारे ह्यूमन डिजायर्स की ना देख कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हारी ऐसी नेचर है ना कि तुम्हें बस डोपामीन ही चाहिए हमेशा, अब डोपामीन के लिए जो लॉफुल एक्टिविटीज हैं, लॉफुल डिजायर्स हैं, वो आप पूरी कर चुके हो। अब आपको डोपामीन किससे मिलेगा भाई? ऐसी चीजें से जो इलीगल है या आपको जो एक पावर प्रोवाइड करती हैं। तो तभी ये लोग ना पावर हंग्री होते हैं, पावर क्रेजी होते हैं, और ऐसी गलत हरकतों में भी पड़ जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है भाई कि आफ्टर अचीविंग सम वेल्थ, ठीक है, आपको एक बेस मिल गया है लाइफ का, जो हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, इस पे इसके बाद ना फिर आपको लिटरली नीड होनी चाहिए या होती है एक अध्यात्म की भाई, स्पिरिचुअलिटी की। और तभी आप फिर एक कंटेंटमेंट हासिल करते हो, जो कि ये जो टॉप 0.1% लोग हैं ना वो नहीं हासिल कर पा रहे। जेफरी एप्स्टीन को नहीं हासिल हुई भाई कंटेंटमेंट, अगर उसने वो हरकतें की हैं एलिजिडली जो अ, ने करी है यार, वीडियो प्रूफ है, ट्रम्प ने करी है, लाइक फक। हाँ। क्या ही है ये। तो सो पता यही है होता हम्म। कि बहुत जरूरी है एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड करना कि बस हो गया, मुझे इससे ऊपर हम्म। कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं है जरूरत। जैसे अभी तेरे पास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इतनी डिसेंट सेविंग्स होंगी, इतने डिसेंट रिलेशनशिप्स होंगे कि तू नहीं डिजायर कर रहा होगा यार मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। सेम विद मी ऑल्सो। तभी हम इतने डिप्रेसिंग बातें करते हैं भाई, जब हम पर्पस ऑफ लाइफ को लेके बैठते हैं, हमें फन नहीं आ रहा, फन नहीं आ रहा। और जो एडवोकेट ये बात कर रहा है इसीलिए फन नहीं आता है, क्योंकि वंस यू
अचीव समथिंग दैट यू वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बस वो फीलिंग होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो फीलिंग इतनी प्यारी होती है ना, वही कह रहा है कि उस फीलिंग को एंजॉय करो, बिकॉज वंस यू हैव इट, इट्स गॉन। कितनी वो डीप पता है शिट है इस भाई जो ये बोल गया। बिल्कुल यार, बिल्कुल। और तेरे ही वाले पॉइंट को मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ। तो ये सोच कि हम तो बिलियनियर नहीं बने, हम तो बिलियनियर से हम्म 1,000 माइल दूर होंगे। मतलब 1,000 लाइट ईयर्स अवे है हम लोग, राइट? तब भी हमें ये वाली फीलिंग आ गई है। नाउ वी डोंट डिजायर टू ट्रेवल, वी डोंट डिजायर टू गो फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट। हम लोग को नहीं चाहिए कोई एकदम महंगी गाड़ियां हम्म और फिर ये हम्म और वो, राइट? हम लोग इतने में भी कंटेंट हो गए ना। तो इसी चीज से मैं स्टार्ट किया था उस टाइम पे। आपको बिलियनियर बनने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों का स्टेज है कि हम लोग इस लेवल पे आकर के रुक गए हैं। कोई हो सकता है कोई एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, उसको भी अगर ये रियलाइज हो जाता है तो एटलीस्ट वो उस डिजायर पे नहीं रहेगा कि हम्म और हाँ, मैं अपनी हम्म लाइफ को बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं उस पर बिल्कुल फोकस करूंगा। लेकिन बेटर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्विफ्ट से मैं अब खरीद लूंगा भाई, मेरे को कोई सेडान पे जाना है अचानक से, या फिर मेरे को कोई जैगुआर खरीद लेनी है अब। तो आपको ये हम्म पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो इवेंचुअली वो एक मैसेज लैंड किया। अब मैं वो पावर वाले पे आता हूँ भाई। ये तो एट द एंड ऑफ द डे सही बोल रहा था, जैसे कि ईस्टर्न फिलोसफी है, आपको स्पिरिचुअल उसमें जाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ फिलोसफी में आप जाओ। भाई गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा, तब जाकर के मोक्ष मिला। कितनी सिंपल सी बात है। उन्होंने डिजायर को छोड़ा और आखिरी में मैसेज क्या है? डिजायर इज द रूट कॉज फॉर ऑल द ट्रबल्स इन योर फकिंग लाइफ। बेस लाइन पे यही हम्म मैसेज है। डिजायर खत्म करो। ये पावर का गेम क्या है? ईगो को ही तो सेटिस्फाई करना है। हम्म मैं ट्रू मैं आज 2 सोसाइटी पे कंट्रोल कर रहा हूं, अब मेरे को 5 सोसाइटी में करना है, मेरे को पूरे स्टेट को कंट्रोल करना है। अब मैं इंडिया पे रूल करूंगा, मेरे को वर्ल्ड पे रूल करना है। वो पावर का कोई एंड नहीं है, ठीक है? तो हम्म ये ईगो से ही आ रहा है। तो ईगो को डिसॉल्व करना आपके लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ईगो कैसे डिसॉल्व होगा? वो कोई साइंटिफिक मेथड से तो नहीं होने वाला, ये तो क्लियर है, ठीक है? तो साइंस का इस पे कोई रोल नहीं होगा। फिलोसॉफी का इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वो हिट करता है उस तुम्हारे बॉटम लाइन ईगो पे। इसको डिसॉल्व होना ही है। तुम ही एग्जिस्ट नहीं करते, तुम शरीर नहीं हो, तुम दिमाग नहीं हो, तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तो ये इतना फक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई। ये वही है ना भाई सागर की, जो अपन ने एक बार बोला था ना, न्यूक्लियर आपने बॉम्ब तो बना लिया, वो बटन पे उंगली रखी हुई है, वो कौन दबाएगा? आई एम प्रिटी श्योर वो इंट्रोस्पेक्ट वाला तो बंदा नहीं होगा जो आत्म अवलोकन कर रखा होगा। वो बंदा तो नहीं होगा, शायद वो पावर हंग्री होगा, ठीक है, तभी वो बटन दबा सकता है। तो हम्म फिलोसफी इज समथिंग जो कि सेव कर सकती है ह्यूमैनिटी को उस सेंस में। तो देयर हाँ हैज टू भाई, बी लाइक फकिंग लाइक हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स मैन। मैं तो इस पीस पे बिलीव करता हूँ भाई कि जो ईस्टर्न फिलोसफी है ना, अगर हमने पूरी दुनिया को अच्छे से पढ़ा दी, अच्छे से समझा दी, इमेजिन वर्ल्ड कितना बेटर प्लेस में होगा। आपकी ईगो डिसॉल्व हो चुकी है ना, तो फालतू की डिजायर्स भी डिसॉल्व हो चुकी है। आप नहीं हंग्री हो चूतिया चीजों के लिए, जो लोग करते हैं आज के टाइम पे। और ये पता, टॉप 0.1% जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, टुवर्ड्स ऑल बिल्कुल। टाइप ऑफ बैड शिट, बिकॉज दे आर जस्ट हंग्री फॉर पावर। दे हैव नॉट रियलाइज कि ये जिन भी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, भाग भाग के कुछ नहीं मिलेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। और यही सिखाती है आपको ईस्टर्न फिलोसफी, कि डिजायर्स का कोई अंत नहीं है, उसको बस डिसॉल्व करना है। ईगो डिसॉल्व हो गई तो डिजायर्स भी डिसॉल्व हो गई। तो कितनी पावरफुल फिलोसफीज हैं जो लोग, स्पेशली इंडियन फिलोसफी जो है, मतलब वो कोर है ईस्टर्न फिलोसफी का। चाइना की जैसे ताओइज्म डाओइज्म वगैरह भी है ना, नहीं, ईस्टर्न उससे में तो अपन बेटर ही आ गए ना। ईस्टर्न में चाइना की भी आती है ना, जैसे वो ताओइज्म हाँ वगैरह अच्छा। है। हाँ। तो भाई जितना मैंने पढ़ा है, ताओइज्म वगैरह को बीट करती है भाई अपनी अद्वैत वेदांत या फिर बुद्धिज्म भी, ठीक है। तो मैं इस चीज को वंडर करता हूँ, इतनी अच्छी फिलोसफीज जो अपने ही कंट्री से आई हैं, इनकी वैल्यू नहीं है अपने देश में। यहाँ लोग नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगता है ये कोई सुपरस्टिशियस सी शिट है भाई। वो देख के ना दुख होता है।
These बहुत philosophies ज्यादा यार। hold the power to change the world, और अपने ही देश में हम अपनाना नहीं चाहते हैं इनको। Like what the पता है fuck? तभी इसी चीज में ना भाई सागर, मेरे को ना ये अनफॉर्चुनेटली फिलोसफी आप देते हो और फिर जब वो रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है ना, फिर लाइक कुछ भी हो, जैसे कि जैनिज्म हो गई, ठीक है, जैन ने एक फिलोसफी दी, वो जैनिज्म बन गया। बुद्ध ने एक हम्म। फिलोसफी दी, वो बुद्धिज्म बन गया। वेदांत की फिलोसफी दी, अनफॉर्चुनेटली वो तो लाइक उपनिषद के लेवल पे तो रह ही नहीं गया, फिर वो प्रशांत किसी की और फिलोसफी ही। बन गई। नहीं, इससे आचार्य नहीं, मतलब कि इन जनरल तू देखेगा वहां से एक अलग ही वेव चालू हो गई। कहाँ से कब ये भक्ति आ गया, कब ये रिलीजन आ गया, कब उसके बाद फिर ये आपकी आलतू फालतू बुक्स लिखनी लग गए आप, मनुस्मृति टाइप की, या फिर कोई इस टाइप के पुराण जो कि कोई लॉजिकल सेंस बिल्ड ही नहीं करते हैं। कि मैं, जैसे वो गरुड़ गरुड़ पुराण में है ना कि मरने के बाद आपके साथ ये कोई तेल में फ्राई किया जाता है आपको। लाइक ये कहाँ से आ गए? तो आप ये सोचो कि फिलोसफी से आप इवॉल्व हो रहे थे, आपने ऐसा डिटूर लिया कि आप ये रिलीजन में मिक्स हो गए, और अब आपने रायता फैला दिया। काश ये देख, फिलोसफी ही रहती। और वेस्ट में तू देख, मतलब कि ना, ये वाली चीज मेरे को थोड़ा लगता है कि हाँ, फिलोसफी है तो वो फिलोसफी ही है, और अगर एक क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन है तो वो सेपरेट है। हम्म ये चीज हम्म। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है सागर। देख, इसमें ना मेरा एक क्वेश्चन आता है, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ इसका आंसर क्या है। जैसे अगर हम अपनी हिंदू हिस्ट्री की बात करें, अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो लेट्स से किसी ने अद्वैत वेदांत लिखा, किसी ने पुराण लिखे, किसी ने गीता लिखी। मैं तो इसी ओपिनियन को रखता हूँ कि हर एक टेक्स्ट एक डिफरेंट ऑथर ने लिखा है। पता है कितना गैप है इन टेक्स्ट के बीच में? जैसे कि अपना जो फर्स्ट वेद आया, उसमें और लास्ट जो अपना पुराण आया, उसके अंदर शायद 2000 साल का गैप है। काफी होगा। तो ऑब्वियसली सारे टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स से लिखे गए थे। सो हाउ कम हमने वो सारे टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के उनको कंपाइल कर दिया एक रिलीजन के अंदर? जब मैं बात करता हूं कि हिंदू रिलीजन बेकार है, मैं क्या सारे के सारे टेक्स्ट को बेकार बोल रहा हूं? या फिर अगर मैं कह रहा हूं कि हिंदू रिलीजन सुप्रीम है, तो सारे टेक्स्ट सुप्रीम है? ऐसे कैसे हो सकता है? अद्वैत। फिर तू हैंग हो गया क्या सागर? बहुत टेक्स्ट लिखे गए डिफरेंट टाइम्स में बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो मैं कैसे कह दूं कि पूरा हिंदू रिलीजन ही खराब है या पूरा हिंदू रिलीजन ही सही है? तो मेरे को जो टेक्स्ट मिले बाय डिफरेंट ऑथर्स जो मुझे सही लगे, वो तो मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो ये हमने सबको वैसे कंपाइल क्यों कर दिया एक रिलीजन के अंडर? जैसे कि इस पे एग्जाम्पल, जैसे यूरोप, ठीक है, डिफरेंट फिलोसफीज आई। अब सोक्राटिस भी आया, अब कितने मतलब डायोजनस आया, नीचे आया, जितने फिलोसोफर आए। इमेजिन अगर यूरोप ने क्या किया होता कि इन सबके वर्क्स को एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया होता कि ये अब अपना रिलीजन है। कितनी एब्सर्ड थिंग होती। ये अपने हम्म हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन हम खुद लोगों ने बनाया, सब टेक्स्ट को कंपाइल कर दिया, ये अपना हिंदू धर्म है। और कंपाइल भी हम्म कैसे किया? जो सबसे वर्स्ट टेक्स्ट थे उनको ऊपर रख दिया, पुराणों को ऊपर रख दिया। और जब जो सबसे सुप्रीम टेक्स्ट थे, जो फिलोसफीज थी, उनकी कोई बात ही नहीं करता, उनको पता ही कोई नहीं है पढ़ता ही लोगों नहीं को। है। हाँ। मेरे इतने रिलीजियस हार्डकोर लाइक राइट विंग फ्रेंड्स है ना, मैंने उनको बोला कि उपनिषद तुमने सुना है इसके बारे में? उसको नहीं पता था। हाँ। मैंने वेदांत ऐसे, हाँ, वेदों के बारे में सुना है। तो मैंने बोला जो वेदों का जो बेस्ट वर्जन था, जो कि समराइज वर्जन था, जो वेदांत होता है, वही तो उपनिषद है, तो तुमने उसके बारे में नहीं सुना? उनको नहीं पता है भाई। ठीक है, तू सोच वही। करके देख। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, चल गीता के बारे में सुना है? हाँ हाँ, गीता बिल्कुल भाई, मैं तो जय श्री कृष्ण और फिर ये और वो चालू हो गया एकदम। मैंने बोला अष्टावक्र गीता के बारे में सुना है? तो बोला नहीं। नहीं भाई। मैंने बोला तेरे को पता है उसको महागीता कहा जाता है? बोला नहीं। ये तो रियलिटी है। तो तेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, अब ये क्यों हो गया इसका तो जवाब नहीं है। ठीक है, आई ये गेस अतुल मेरे भाई ख्याल से से तो पूछेंगे एक बार। पता है, मेरा मेरा जो इस पे हाइपोथेसिस है वो ये है कि उपनिषद ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं।
हाँ थोड़ा सा मेटाफिजिकल वे में ड्वेल करते हैं, लेकिन उसको अगर प्योर फिलोसफी आप पढ़ोगे ना, तो आप काफी कुछ लर्न कर सकते हो। और मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा भाई, आपको अगर आप एथिस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, आपको ना अगर वो कहीं पे भी ब्रह्म को बोल रहे हैं ना, आप प्लीज उस चीज को यूनिवर्स ले लो या फिर नेचर ले लो। गॉड मत बोलना या ब्रह्म मत बोलना, सिर्फ यूनिवर्स ले लो, आपको वो लिटरली सारी चीजें अलाइन दिखेंगी फिर। मैं पर्टिकुलरली वैसे पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम ज्यादा मेटाफिजिक्स में वैसे नहीं घुस जाऊंगा। तो इतनी सही लगती है वो चीजें। अब लोग ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें कोई आपको ना मेल मिलाप नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कोई तड़का नहीं है, रिलेशनशिप्स का तड़का नहीं है, या फिर कोई गॉडली कोई चीजें नहीं बताई जा रही हैं। तो ना लोग इंटरेस्ट नहीं आता है। जब भी लिखा होगा उपनिषद, हम्म। उसके 1000 साल के बाद लोगों को चाहिए था यार, कितना अच्छा भक्ति कल्चर चालू हो गया, हाँ। या फिर आपका फिर ये अलग टाइप के पुराण आ गए। ये पता चलता है। रामायण की पूरी स्टोरी पता होगी, महाभारत की पूरी स्टोरी पता होगी, लेकिन गीता का जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है वो नहीं पता होगा। वो उलझ हम्म। जाएंगे। हाँ ठीक है, पुनर्जन्म की बात हुई है, आप थोड़ा अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगा के सोच करके भी तो देखो ना, कि शायद मे भी कुछ और बात हो रही हो। ठीक है, वो ये नहीं तो ना, होता होगा, एक बॉडी से सोल दूसरे पे नहीं जाती है, लेकिन थोड़ा अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगा और फिलोसफी के जैसे पढ़ लो ना उसको, क्या दिक्कत है। तभी बोल रहा हूँ, फिलोसफी और रिलीजन कभी मिक्स नहीं होना चाहिए था। काश इसको अलग ही रखा जाता। हमने किया ही नहीं मिक्स। मुझे नहीं लगता हमने मिक्स किया है। मतलब जो अब ऑथर्स जिस इंटेंट से वो टेक्स्ट लिख रहे थे, जैसे जिस आदि शंकराचार्य ने वेदांत दिया, ठीक है, वो नहीं इंटेंड कर रहे थे कि 500 1000 साल बाद हम इसको एक हिंदू रिलीजन कैटेगरी में डाल देंगे। उन्होंने बस फिलोसफीज को समराइज किया, वेदों को समराइज किया बेसिकली, है ना। तो उस टाइम पे क्या उनको पता था कि ये हिंदू रिलीजन का पार्ट बनने वाला है आगे जाके? उनको वो तो तो नहीं अपनी पता फिलोसफी होगा। दे रहे थे भाई बस। हाँ। ये हमारी मिस्टेक थी, है ना। और एक पैटर्न नोटिस कर, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो अभी हैं अपने हिंदू धर्म में सपोजिटली, उन्होंने सिर्फ वो चीजें उठाई जो वो याद कर सकते थे, जो रिचुअल्स थे। जो कि एंटरटेनिंग थी, टू बी ऑनेस्ट, जो कि थोड़ी सी मसालेदार थी, एंटरटेनिंग थी, और तो हमने वो शॉर्टकट्स कर थी। लिया। शॉर्टकट थे हाँ। वो, कि हाँ मैं भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, प्रे करूंगा तो ये मिल जाएगा। फिलॉसफी सब में में वही एफर्ट डिजायर, लगता है। सब में डिजायर। फिलॉसफी में अष्टावक्र एफर्ट पे, लगता है। सॉरी इसी पे एक चीज बस बोलूंगा, अष्टावक्र गीता में लिटरली ये बोला गया है कि अगर आपको मोक्ष की भी इच्छा हो गई है ना, तो भी आप नहीं पहुंचे हो। कुछ तो इच्छा है ना हम्म। आपके अंदर। ट्रू हर ट्रू। चीज को जिस दिन खत्म कर दिया ना, तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये नहीं, मुझे मोक्ष पाना है, उसके लिए मैं ये करूंगा, मैं ओम के 10 बार चैंट करूंगा, भक्ति करूंगा। नहीं ब्रो, तू पॉइंट ही नहीं समझा। मोक्ष की डिजायर भी एक डिजायर है। मुझे मोक्ष चाहिए, तेरा मैं कहाँ खत्म हुआ, ये लिखा है उसमें। हम्म। अब कोई इसको रिलीजन के अंदर डाल दे, ठीक है, और हम्म। फिर हम तो देख रहे हैं कि नतीजा क्या हुआ है। काश ये अलग ही होता, इसको अलग से हर उस पे पढ़ाया जाता है इन अ डिसेंट इनफ वे। कहीं बिल्कुल। रिलीजन का कोई मेल मिलाप नहीं। लाइफ वुड हैव बीन फार बेटर भाई, इस कास्टिज्म से बच जाते, सुपरस्टिशन से बच जाते। कहीं सुपरस्टिशन की हिंट नहीं है, कास्टिज्म की हिंट नहीं है वो अष्टावक्र गीता में। भाई तू तू इमेजिन कर, जहां पे ईगो को डिसॉल्व करने की बात चल रही है। लेट्स से एक ऑथर था, एक पर्सन था जो चाह रहा है कि आप ईगो को डिसॉल्व करो, उसकी फिलॉसफी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो कैसे कास्टिज्म फैला सकता है भाई? कोई चांस ही नहीं है, दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं वो। और हमने इसी फिलॉसफी को उखाड़ के फेंक दिया। हमें क्या चाहिए था? हमें रिचुअल्स दे दो, हमें ना शॉर्टकट्स दे दो। हाँ हम प्रे करेंगे, हमें ये चीज मिल जाएगी। फिलॉसफी को एक्सेप्ट ना करना, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और इंडिया की हमारे तो थी यहां से ही। आई है, तो इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रही है। वही, सोच के देख भाई। आयरनी तो देख मतलब, फक भाई, मतलब क्या किया आप लोगों ने और यार अभी ये। के टाइम पे भी ठीक है, हमने मिस्टेक करी इन द पास्ट। अभी जो इंडिया के रैशनल थिंकर्स हैं, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो इस फिलॉसफी को? तुम्हें क्या खुन्नस है? पता है क्या है, हम ना बड़े इनसिक्योर लोग हैं भाई। हमें चाहिए जो अमेरिका एक्सेप्ट करेगा ना, जो वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, हमें बस वो चाहिए। अभी तू एलेक्स के वीडियोस देख, वो कॉन्शियसनेस अद्वैत की बात कर रहा है ना। 2 साल तक वेस्ट ने अगर अद्वैत वेदांत को एक्सेप्ट कर लिया, पॉपुलराइज कर दिया, तब देखियो अपने इंडिया में लोग कैसे भागेंगे इसकी तरफ।
इनको एक बाय द वे वैलिडेशन ऑलरेडी चाहिए। है। बाय द वे वैसे है, मतलब कि इंडियन कल्चर में आते हैं, है ना? अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर जैसे कोई गीता की बात कर रहा है, तो अब वो क्या फिलोसफी वे में उसको इंक्वायर कर रहा है, या फिर वो उसको रिलीजन के एस्पेक्ट में इंक्वायर कर रहा है? हम्म। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तू हम्म। देखना वो कृष्ण के कितने वो मंदिर है जहां पे ये भक्ति कल्चर चलता है, ठीक है? वो कितने फॉरेनर्स आते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसको लेकर के। हम्म। वो भक्ति मूवमेंट को लेकर के वो ज्यादा फील कर रहे हैं, या वो गीता का रियल इंटरप्रिटेशन वो देख रहे हैं, और उस पे अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है जिससे समाज में अभी करंट नुकसान हुआ है, तो क्या वो उसको साइड रख के जो अच्छी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सके, क्या वो कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, लेकिन नहीं हाँ करते अट्रैक्ट भाई। तो होते हैं। अट्रैक्ट यार होते हैं इन सारी फिलॉसफी से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से तो अट्रैक्ट होते हैं ना। वो फिर गलत साइड वाले में फॉल कर जाते हैं तो आई डोंट नो। अगर वो सही एस्पेक्ट में फॉल कर रहे हैं, जो ट्रू मीनिंग थी स्पिरिचुअलिटी की, तो गुड फॉर देम। मैं तो हम सबको लोग नहीं यही करते। बोलूंगा भाई, मैं सबको यही बोलूंगा, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ईगो को डिसॉल्व करना, ईगो डेथ, सेल्फ नहीं है, ये नो सेल्फ वाली जो फिलोसफीज हैं, इनको ना पढ़ना शुरू करो भाई। पता है, योर बिल्कुल लाइफ यार। विल बी चेंज्ड। पूरी दुनिया बदल जाएगी, आपका पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा। और वही है, सोर्सेस तो यही है ना भाई। ठीक है, मैं भी ना ऐसे बात कर सकता हूँ कि मैं एक वीडियो बना सकता हूँ इस पे 10 मिनट का, कि हाउ टू डिसॉल्व योर ईगो विदाउट इवन मेंशनिंग वेदांत या बुद्धिज्म या भगवत गीता, लेकिन सोर्स वही है। सोर्स को एक क्रेडिबिलिटी देना, एक इम्पोर्टेंस देना मुझे जरूरी लगता है भाई, स्पेशली जब अपने कल्चर का पार्ट है, अपनी हिस्ट्री का पार्ट है। एंड बाय द वे, जो अपने वेद वगैरह आए थे ना, दे वर द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसफीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद आए ये सोक्रेटिस, नीचे वगैरह जितने भी हैं। दुनिया की फर्स्ट फिलोसफी पता है कौन सी है? वेदांत। दुनिया की फर्स्ट फिलोसफी है ये, और उसको हम रिगार्ड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेस्ट एक्नॉलेज नहीं कर रहा। वेस्ट से इनसिक्योरिटी एक तो हटाओ भाई। मैं तो इस ओपिनियन पे भी आता जा रहा हूँ, वेस्ट ने जितनी दुनिया की गांड मारी है ना भाई, हम अभी ना जैसे, वही है कि हाँ, हमें यूएस जैसा बनना चाहिए था, हमें चाइना जैसा बनना चाहिए था, ऐसे माइंड में थॉट आते रहते हैं ना, कि हम पीछे रह गए, पीछे रह गए। यार इन्होंने ना पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है भाई। अभी क्या सीन चल रहा है ईरान वगैरह में? भाई यूएस गुंडा है वर्ल्ड का, दुनिया का गुंडा है है वो। ही। प्रेसिडेंट को उठा लिया भाई सीधा, तू और क्या बोलेगा? अगर भाई चाइना इतनी करता, नॉर्थ कोरिया करता, रशिया करता, तो ये क्या बोलता उस टाइम? इतनी एट्रोसिटीज इसने कमिट करी है ना, चाहे तो गल्फ नेशंस की बात कर, इराक, ईरान, जहां भी इसने गन मचाया है, जस्ट इन द नेम ऑफ पावर। तो हमें पता नहीं यार, जो इनकी एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है मैं एक्नॉलेज करता हूँ, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में यूएस बहुत आगे है, लेकिन उनसे हुआ क्या लोड़ा? तो मुझे एक बात बता बे सागर, ये जो गुंडई चल रही है, ठीक है, उधर ट्रम्प की, कोई भी एक कंट्री वाला कोई लिटरली सब कुछ कमेंट कर रहे हैं, चाइना की गांड में कूदा है तो वो कमेंट कर देता है, या फिर कोई रशिया कमेंट कर देता है, बट देन अगेन मतलब आप सारी कंट्रीज मिल करके इसको कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? कल की डेट में अगर कोई उठा करके किसी और कंट्री का, ब्राजील के प्रेसिडेंट को उठा लेता है, या फिर पावर है वो ना भाई। अपना चाइना ताइवान के उसको उठा लेता है, तो क्या आप लोग कुछ बोलोगे? नहीं। तो मतलब जो ये टॉप के जो 4-5 पावर हाउसेस होंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए सब अलाउड है। और जो कुछ भी कर गरीब देश सकते क्या हैं भाई। करेंगे? हम लोग एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या? नहीं नहीं, हम तो डिप्लोमेटिक हैं। सीरियसली? आप कुछ नहीं बोलोगे? कहाँ गया वो 56 इंच बे? खैर चल, वी डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, बट लाइक फक, ये मेरे को इतनी चूतिया पे वाली चीज लगती है ब्रो। मतलब क्या बोलूं मैं? यार वही है ना भाई, कि एक स्कूल में गुंडा है, ठीक है, एक क्लास का गुंडा है, जिम विम करता है, मसल्स हैं, हाइट लंबी है, किसी को भी पेल सकता है ना भाई। मैं तभी बोल रहा हूँ, वही इनके वाली लिए बात है। ईगो को खत्म करना कितना इंपॉर्टेंट है। जो टॉप के बहुत 4-5 इंपॉर्टेंट है। पावर हाउसेस को जो लोग हैं, अगर ये स्पिरिचुअल नहीं हुए, तो हम सबको पता है कि ये वर्ल्ड पे कुछ भी कर सकते हैं फिर, है ना? पूरी वर्ल्ड को हम्म। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। टेरिफ वॉर क्या चल बिल्कुल। रहा था यूएस का? बिल्कुल। गरीबों को कंट्रोल ही कर रहा है ना, डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा है, बट इस तरीके से। तो आपको ये स्लेव बना करके रखे हैं अभी भी,
डायरेक्टली आपकी कंट्री पे राज नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली आप अब भी स्लेव हो। ये मत हम्म। समझो कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, प्लीज, आपका तो मुंह नहीं खुल पा रहा है, तो काय के विश्व गुरु हो आप अभी, है ना? तो मुझे लगता है कि ये जो ईगो खत्म करना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना कोई भी फिलोसफी पकड़ लो यार, कोई जरूरत नहीं है ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंडियन हो तो आपको यही करना चाहिए, वेस्ट में हो तो आपको किसी फलानी फिलोसफी, नहीं, कुछ भी पकड़ लो, आपको जो सही लगता है, आपको और यही इसमें, ट्रुथ मिलेगा आखिरी में। लेकिन ईगो पता को है खत्म पीके, इसमें करना है। पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? मान ले इंडिया इस फिलॉसफी को अब अडॉप्ट करता है, हम सारे इंडियंस ना ईगो डिसॉल्व करके बैठ जाते हैं सपोजिटली। पता है दुनिया हमारी गांड मार लेगी, क्योंकि मारी भी, आई compete, गेस। और शायद यही रीजन होगा भाई। बेबी। मतलब अभी के टाइम पे इमेजिन कर, पास पे चल जाते ही नहीं है। अभी हम बन जाते हैं एक आध्यात्मिक देश, हम अच्छे हैं भाई, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, हम कंटेंट रहते हैं विद व्हाट वी हैव। यूएस अपनी गांड नहीं मार लेगा, क्योंकि एक बुली को ना, मतलब एक वीक पर्सन चाहिए ही चाहिए। हम एज अ वीक पर्सन फिर दिखाई देने लगेंगे पूरी दुनिया को कि इनके पास ना वो, देख वही बात है ना कि इस क्रूअल दुनिया में सरवाइव करने के लिए, compete करने के लिए आपको भी क्रूअल बनना पड़ता है। वही चल रहा है। अब जैसे अम, कैसे बोले अब इसको, जैसे थाईलैंड है जो कि मतलब 90% प्लस वहां पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है ना, एक हम्म। पर्टिकुलर रिलीजन, और उनका थोड़ा सा अलग ही है वो, क्योंकि मल्टी कल्चरल टाइप के हैं, या जो बुद्धिज्म का कौन सा वो सेक्ट फॉलो करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि वो कई गॉड पे भी बिलीव करते हैं, और है ना, फिर वैसे नॉनवेज खाना उनके लिए लाइक परफेक्टली फाइन है। तो इस टाइप की चीज आई डोंट नो, बट देन अगेन उन पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, ऑफ कोर्स वॉर चल रहा है कंबोडिया से, ये वो हम्म। आज तक के कॉलोनाइज नहीं हुए, है ना? तो अगर मैं सिर्फ यही बोलूं कि थाईलैंड एक छोटा सा देश था, वो आज तक कॉलोनाइज नहीं हुआ, और हम लोग भी तो मतलब यही ईगोलेस अगर चल रहे होते, which हम लोग कभी थे नहीं बाय द वे, गीता में कृष्ण को आके बोलना पड़ा था कि अगर वो स्टैंड था जो हिरार्की को खत्म करना, ठीक है, कास्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर को, अगर उनका ये रियल मोटिव था, तो तू सोच ले कब से चला आ रहा था, और वो ब्रेक भी नहीं हम्म। हुआ इवेंचुअली। तो हम चूतिए तो थे, देख, है ना? ये इस पे कोई दो राय नहीं है। बट आई डोंट नो, मतलब, बट हाँ, ये वाला पॉइंट कि अगर लिटरली कोई सबके सब एक ऐसा हाइपोथेटिकल से आप प्रोग्रेस करना भी बंद कर दोगे, ठीक है, आई मीन आप बिल्कुल। बोलोगे लड़ाई झगड़े में तो कोई मतलब ही नहीं रखा है, वही। तो मैं क्यों वेपन्स पे इन्वेस्ट करूं, स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई हाँ। मतलब ही नहीं है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच में रहो, डिजायर हाँ। खत्म करो, मटेरियलिस्टिक चीजें क्यों गैदर करनी है, आपका प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगा क्योंकि आपकी डिमांड ही खत्म हो गई, मतलब डिमांड सप्लाई के बाद सबके पता नहीं क्या किस तरीके से लौड़े लगेंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन पीके, क्या वो एक बेटर लाइफ होगी? इमेजिन कर आई एक डोंट ऐसी इवन नो। दुनिया, इमेजिन कर पूरी दुनिया को अभी हम एक अध्यात्म का पाठ पढ़ा देते हैं, सब वेदांतिक बन जाते हैं, किसी के कोई डिजायर नहीं है, कोई नहीं चाह रहा अब कुछ नया इन्वेंट करना, कोई पावर हंग्री नहीं है तो कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करना बंद कर दिए हैं। इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हम कहेंगे भाई कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन वी विल एक्चुअली बी लिविंग अ बेटर लाइफ। देख, जैसे जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, हमारे हैप्पीनेस लेवल्स चुतते जा रहे हैं। तो उन साइंटिफिक एडवांसमेंट से हमें मिला क्या एट द एंड ऑफ इट? अच्छा, मैं इसका ना एक आंसर देता हूँ एक पर्सपेक्टिव शेयर करके, कि लेट्स से क्या ये जरूरी है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि अगर मैं अवेयर हो जाता हूँ, ठीक है, ईगो में खत्म कर देता हूँ, तो क्या मैं जो काम मुझे अच्छा लगता था, लेट्स से क्रिकेट खेलना ही अच्छा लगता था, मैं क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत करके अपने देश का नाम करूंगा, और काफी पैसा भी आएगा उससे, पर्सनल लेवल पे भी और देश के लिए भी अच्छा होगा, ब्ला 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 ब्ला, मेरा एक इल्यूजन था, लेकिन अब मैं अवेयर हो गया हूँ, मैं तब भी खेलूंगा ना, इट्स ओके, मैं अटैच होकर के नहीं खेलूंगा कि अगर कल की डेट में खेलना बंद हो जाता है तो मैं डिप्रेस हो गया, नहीं, मैं खेलूंगा, इनफैक्ट अब मैं एक उस शायद ऐसे पैशन के साथ खेलूंगा कि मैं एकदम फ्री हूं उस चीज से, तो एक ये पॉसिबिलिटी हम्म। भी होती है कि अगर मैं साइंटिस्ट हूं तो मैं कुछ एक्सप्लोर करूंगा, अब शायद मैं समाज के बेनिफिट के लिए करूंगा,
है ना, एकदम उसी हम्म। थॉट प्रोसेस के साथ। ट्रू। तो एक ये स्टेज भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ डिटैच होना मतलब सबके सब जंगल में चले जाएंगे और सिर्फ दो रोटी सब मॉन्क खाएंगे, बन गए हैं। सबके सब मंग बन गए, नहीं। मैं तब भी वो चीज करूंगा जो मुझे पसंद थी। हाँ, बट अब मैं अटैच नहीं हूँ। डिजायर को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज को करना ही बंद कर देना, रिलेशनशिप छोड़ देना, नहीं। मैं उसमें भी फन करूंगा विदाउट अटैच टू इट, एंड हाँ दैट्स ट्रू। अबाउट इट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बाद और मुझे नहीं लगता कि हाँ अगर सही कोई कह रहा है। न्यूक्लियर वेपन बनाएगा भी ना, तो वो बटन दबाने के उस न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उससे शायद कुछ अच्छी चीज वो बनाएगा। क्योंकि कोई वो बम वो रेड बटन दबाएगा तो नहीं फॉर श्योर, लेकिन हाँ वो अच्छी चीज के लिए यूज करेगा, एक ऐसा एनर्जी सोर्स के लिए। और ऐसे भी सोचना, जितनी भी इन्वेंशंस हुई है ना, जो भी लोगों ने इन्वेंशन से डिस्कवरीज करी हैं, वो पावर ऑब्टेन करने के लिए नहीं करी थी। दे वर एक्चुअली पैशनेट अबाउट व्हाट दे वर डूइंग। जैसे कि मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक बिल्ड कर रहा था, वो पावर हंग्री नहीं था। उसके माइंड में एक हम्म। आइडिया आया, उसको बस एग्जीक्यूट करना था भाई, वो पैशनेट था। या न्यूटन ने जब लॉज ऑफ मोशंस डिस्कवर करे, तो वो पावर हंग्री नहीं था किसी भी सेंस में। ही वॉज हम्म। जस्ट पैशनेट अबाउट इट, पैशनेट अबाउट एक्सप्लोरिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। या फिर आइंस्टाइन की हम्म। डिस्कवरीज जितनी भी ले ले, तो सही बात तो कर रहा है कि विदाउट क्रेविंग फॉर पावर तब भी इन्वेंशंस डिस्कवरीज होती रहेंगी, होगी। क्योंकि हम क्यूरियस तो है ही ना बाय नेचर। बिल्कुल। लेट्स भाई, जैसे हम अभी लेट्स से थोड़े अवेयर हो गए हैं, क्या हम अपने उफ, सोचने का क्या हमने हम लोग नहीं हुए भाई। लेट्स से हम उसके पाथ पे हैं, उस पाथ पे हैं, ठीक है, राइट अवेयरनेस के ट्रैक पाथ में पे। स्टार्ट कर दिया है, हमने जर्नी स्टार्ट करी है। लेकिन अपने जो सोचने का दायरा है वो और बढ़ता जा रहा है। हम और बिल्कुल। क्यूरियस होते जा रहे हैं। मे बी विल कम अप विद समथिंग। क्या पता हम कोई खोज कर दे भाई फ्यूचर में। लेकिन वो पावर के लिए नहीं करेंगे, वो सिर्फ करेंगे ओह बिकॉज फक। हम पैशनेट है अबाउट थिंकिंग न्यू आइडियाज। मतलब तभी अब जैसे कि अगर इसका ऐसे सोच कि अगर सबके सब लिटरली एकदम शांत हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, और कल की डेट में अगर कोई ऐसा कोविड 3.0 आता है, हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट तो बंद कर दी, अब ये अवेयरनेस के क्या लौड़े में डालोगे, क्या करोगे लौड़े इसका? निपट रहे होंगे लौंडे सब इधर से उधर, समझा? उस समय सिर्फ ये साइंस और मेडिकल साइंस काम आता है। तो आपको ह्यूमैनिटी के लिए सही, क्योंकि अब आप अवेयर हो चुके हो, आपको ह्यूमैनिटी की केयर भी आएगी। मेरे अंदर भी हम्म। यूनिवर्स है, तेरे अंदर भी यूनिवर्स है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तेरे अंदर भी ब्रह्म है। तो मैं मदद करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। तो समझ रहे हो? तो उस सेंस में, अदरवाइज तो चुप जाएंगे भाई साहब। हाँ भाई, जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं भाई, लाइक कन्वीनियंस ले ले। अभी हम घर पे बैठे हैं विद अ रूफ ओवर आवर हेड, एसी वेसी चलाते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में फ्लाई करते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मॉडर्न एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। तो वो जरूरी है। लेकिन जो वेस्ट है ना भाई, वो एक गलत स्पिरिचुअल पाथ पे है। और इस चीज को ना हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए भाई। यूएस को ना एक आइडल मत मानो इन एवरीथिंग, कि हमें उनका वे ऑफ लिविंग भी अडॉप्ट करना है। उनके सारे माइंडसेट, उनके सारी फिलोसफीज को भी अडॉप्ट करना है। भाई जिंदगी जीने का तरीका, आई थिंक ईस्टर्न फिलोसफी ने ही दिया है असली जीने का तरीका। उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट हम खुद तो अडॉप्ट करें, और इन चूतियों को भी क्रिटिसाइज करें कि तुम गांड मार रहे हो दुनिया की अपने हंगर के लिए। लाइक तुम पावर हंगरी ना, कुछ अलग ही लेवल पे हो रखे हो भाई। अभी ईरान के साथ क्या चल रहा है बहनचोद? कुछ नहीं किया था ईरान ने। बेफालतू में उनको like, देख के ना वो लगता है भाई कि क्या यूएस ना, गांड मार तो लूंगा ये यूएस सोच की बे मैं सागर। अगर चांस मिले तो। अरे 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 अरे, तो मार लेगा वो, क्लोन बना करके दूसरा ले आएंगे। क्या मतलब कितनों की मारेगा तू फिर? तो ये सोच बे मतलब कि अपने इंडिया से बुद्धिज्म निकला, अद्वैत वेदांत निकला, जैनिज्म निकला, सिखिज्म निकला, ठीक है? हम्म। ये इतने ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है?
और उसके बाद तू बाकी मिडिल ईस्ट में तू अगर चले जाएगा तो तेरे को इब्राहिमिक रिलीजन वो दिखेगा। वेस्ट में चला जाएगा तो क्रिश्चियनिटी तेरे को दिख जाएगी। लेकिन हमारे में ऐसे 5 बड़े बड़े पिलर्स निकले हैं, ठीक है, और जो कि सब आखिरी में सबका मालिक एक, बस यही बोला जाता है ट्रू। किसी भी शेप और फॉर्म में। तो ये 5 एक कंट्री से निकल रहे हैं और वर्सेस एक एंटायर कॉन्टिनेंट में शायद एक होता है। ऐसे 5 और इनके अलावा फिलोसोफर्स अलग थे हमारे में। ऐसा हाँ नहीं कि हाँ, उसमें कोई कमी रह गई हो। ये तो अपन ने बिल्कुल। रिलीजन में अब जोड़ दिया है इसको, फिलोसोफर्स अलग है। हम्म इतने ज्ञानियों के बाद हम लोग मतलब कि यार पीछे रह गए। यार मेरे को लगता है कि वन ऑफ द रीजंस हो सकता है ये, हम भाई शरीफ थे बहुत। हम भोले थे थे हम, आई भाई। गेस कहीं ना दुनिया कहीं तो इविल थी। रिफ्लेक्ट करती है वो चीज। देख, दुनिया इविल थी भाई। जो इविल होता है ना, वो हमेशा एक कमजोर इंसान को ना एक्सप्लॉइट करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेता है। वही इन्होंने हमारे साथ किया भाई। जो मुगल थे, अंग्रेज थे, हम नहीं इनसे लड़ पाए भाई, क्योंकि हम ना इतने लाइक स्मार्ट नहीं थे टू अंडरस्टैंड देयर मैनिपुलेशन या जो भी। समझ रहा एक है? तो वो था और दूसरा ये था कि हम पहले ही बटे हुए थे। मतलब कि हम लोग की इंडिया वाज नॉट यूनिटी भी नहीं इंडिया, थी। वो अलग अलग कंट्रीज थी इंडिया के विद इन, यूनिटी भी नहीं थी। है ना। हाँ, तो हर एक स्टेट का अपना राजा था, वो आपस में लड़ रहे थे, यही वही। तो फायदा मिला ना हम्म उनको। आप यूनाइटेड हो ही नहीं किसी एक सिंगल कॉज के लिए। अगर कोई हम्म आ गया, चाहे वो गोरे आ गए कि चाहे वो आपके मुगल्स आ गए, आप यूनाइट ही नहीं हो पाए। एक स्टेट पे हम्म अटैक करता, बाकी के जितने स्टेट्स होंगे सबके सब आ जाओ ना, सब राजा यूनिट, उस केस में तो यूनाइट हो जाओ। अपने जो भी भारत का जितना एक्सटेंसिव जो भी हिस्सा था बचाने के लिए, नहीं हुए। हम्म। ये बेवकूफी थी उस टाइम पे। तो फिलोसफी पे तो हम पता नहीं मतलब कितना क्या करते थे क्या नहीं, छुतियापे में पड़े ही हुए थे, एनी विच वेज मार काट तो कर ही रहते ना। राजा लोग लोभी तो थे ही, उनको चाहिए था पैसा वैसा सब तो। अब छूतिए थे बे, सागर देख हम ना। देख, मैं ना नहीं। मैं हाँ, ठीक है, मतलब मैं अपने आर्गुमेंट को वापस लेता हूँ। लेकिन मैं ये चीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ भाई, लाइक कि भाई हमने वर्ल्ड को बहुत ही तगड़ी फिलोसफीज दी हैं अपने टाइम पे। ये तो है, नो डाउट। उस टाइम पे हम इंटेलिजेंट थे भाई। पता है, उसी ये टाइम तो पे ना है, ये मैथ्स वैथ्स में भी हमने काफी योगदान दिया, बिल्कुल भाई, है है ही ना। वो। तो उस टाइम पे देयर वाज समथिंग दैट वी वर डूइंग राइट। उसके बाद हम कोलैप्स कर गए, मे बी आफ्टर द डेविएट हो गए भक्ति भाई मूवमेंट। रिलीजन से। ये जो हुआ ना, मैं तभी तो यार आई हाँ। फकिंग हेट फिलोसफी को। हटा दो रिलीजन से, मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हूँ उस सेंस में। मतलब लोगों को मैं वैसे ही बोलता हूँ, वैसे ही पढ़ो, एक बुक है, एक कोई ऑथर था उसका, एंड दैट्स अबाउट इट। डायोजेनस को लेकर के वेस्ट में जहां पे भी वो लिखा हुआ था, ग्रीक फिलोसोफर था जो भी था, मच नहीं गए लोग, उसकी मूर्ति वूर्ति बना करके नहीं बैठ गए, एज अ हम्म। फिलोसफी पढ़ते हैं उसको। वैसे ही रखो ना, उसमें भी वही कुछ खामियां वही। होंगी, उसको हटा दो। पता नहीं यार क्यों फंस गए। खैर, तो अपना फेवरेट टॉपिक था भाई। कमिंग बैक टू काफी एंड्रू टेट। मैं इम्प्रेस भाई, फक आई एम इम्प्रेस्ड, नॉट इवन किडिंग। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट पे आई एम इम्प्रेस्ड। आई होप कि वो इस टाइप का कंटेंट बनाए जिसमें कि कहीं ना कहीं हम्म अच्छी फिलोसफी की झलक मिलती है भाई। ये चीज है इंपॉर्टेंट। आपको बिलियनियर तक के नहीं पहुंचना है, ठीक है। इट्स लाइक प्लीज थोड़ा सा देखो, आपको क्या पैशनेट थे, उसको डिटैच होकर के आप कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स अबाउट इट, एंड स्टे कंटेंट। हैप्पीनेस की तरफ मत भागो, क्योंकि हैप्पीनेस मिलेगी तो ये हो सकता है 10 दिन के बाद वो चली जाएगी तो तुम सैड हो जाओगे। कंटेनमेंट हम्म। के पीछे भागो, दैट्स द स्वीट स्पॉट यू शुड ऑपरेट इन। और जब हम ये कह रहे हैं ना कि उस डिजायर के टाइम को एंजॉय करो, जब आप कुछ चीज डिजायर कर रहे हो तो उस वक्त को एंजॉय करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि एक जगह थम जाओ, ऊपर उठने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आपको पैसा कमाना है, ऑब्वियसली इतने रिसोर्सेज तो अटेन करने हैं कि आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसेंट अटेन कर बिल्कुल। पाओ। लेकिन मुझे लगता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक आके रुक जाओ भाई। जैसे अभी हम हैं, हम नहीं डिजायर कर रहे हैं मैं कि हमें कोई यॉच चाहिए, हमें पूरा वर्ल्ड टूर हम्म। मारना है। पता है, वो सब ना एक ओवरकिल लगता है मुझे। प्राइवेट जेट चाहिए, नहीं है जरूरत तुम्हें एक लंबोर्गिनी की, फरारी की, कोई नीड नहीं है भाई।
तो उसके पीछे भाग भाग के ना अपनी जिंदगी मत चोद दो। ये नहीं कि मैं 12-14 घंटे काम करूंगा और ऐसा काम करूंगा जो मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि मुझे एक फरारी खरीदनी है। ये काम मत करना। एक हाँ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अटेन कर लो एंड दैट्स इट। उसके बाद ये सब फिलोसफीज पढ़ो, इससे तुम्हें समझ आएगा कि डिजायर्स आर एंडलेस और कंटेंटमेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आप कितना ज्यादा अचीव कर लेते हो। कंटेंटमेंट आप किसी भी स्टेज पे पा सकते हो। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो कभी कभी मुझे फिर ये भी लगता है कि शायद बचपन से फिलोसफी पढ़ा भी देनी चाहिए भाई। इस पे आप कर अब लेंगे पढ़ते एक ही और यार। पॉडकास्ट। हाँ नहीं मतलब इस पे मैं बस वही एंड कर रहा हूँ कि पढ़ाते भी हैं, गीता पढ़ाई जाती है बाय द वे, जैसे संस्कृत में वो श्लोक गीता के रटवाए श्लोक जाते हैं। रटवाए। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एज अ फिलोसफी आप इंट्रोड्यूस तो कर ही रहे हो ना, गीता को एज अ हम्म। फिलोसफी आप वैसे देखो। आप वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, वो श्लोक रट्टा मरवाने के हिसाब से मत करो। मुझे भी भाई हम्म। 90+ आते थे हमेशा मार्क्स, क्योंकि मैं रट्टा लगाता था और उल्टी कर देता था और अगले दिन मैं श्लोक भूल जाता था। ठीक है, हम्म। लेकिन यार फक उसका मीनिंग लिटरली अच्छे से समझाओ, वो फिलोसफी है। आप इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर रहे हो बच्चों के में, लेकिन माइट एज वेल सही तरीके से करो ना। अगर श्लोक बताने ही है तो अच्छे से मीनिंग समझाओ उसके बच्चों को। ट्रू। तो तो हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, इसको एंड यहीं करते एंड हैं। करते हैं। सुनो एंड्रू टेट को भाई, बहुत प्यारा बंदा है। अपना कॉमन सेंस लगा के क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, ये वाले तो कॉन्सेप्ट पे तो भाई इसने तो सीरियसली किक एस भाई, काफी अच्छे बोले हो लड़के तो। तो ठीक है गाइस, इसको एंड करते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।